جتنا بڑا جم غفیر آج یہاں موجود ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ آج لانگ مارچ آج ہے، اور یہ اگر پروٹیسٹ ریلی ہے اور یہ اگر احتجاج ہے تو کان کھول کے سن بھی لو اور آنکھیں کھول کے دیکھ بھی لو کہ جس دن عوام لانگ مارچ کے لیے یہاں پہنچے گی یہاں کیا عالم ہوگا۔ دیکھو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم آج ایک ایسی سڑک پر موجود ہیں جس کو کانسٹیٹیوشنل ایونیو کہتے ہیں، یعنی کہ شاہراہ دستور، جس کی دونوں اطراف میں انصاف دینے والے ادارے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں نہ آئین ہے نہ کوئی انصاف ہے، اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کی آئینی ذمہ داریاں یاد دلائیں۔ ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان اور محترم چیف الیکشن کمشنر کو یہ بتائیں کہ آپ کا ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے، پاکستان کا آئینی ادارہ ہے اور پاکستان کی قوم کا ادارہ ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کو آئین نے آپ کی اور عوام کی رائے کا امین بنایا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کو پاکستان کی آئین کی سبز کتاب میں آپ کے ووٹ کی عزت کی ذمہ داری عطا کی ہے، اور یہ وہ ادارہ ہے جس کو عوام کے ووٹ کی عزت کروانی تھی۔ بتاؤ عوام کے ووٹ کی عزت کروائی اس ادارے نے؟ میں آج آپ کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈ کی کہانی سناتی ہوں۔ جانتے ہو اس فراڈ کا نام کیا ہے؟ اس فراڈ کا نام ہے تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس۔ کیا نام ہے؟ اب میرے پیچھے بولنا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میری بات سن رہے ہو اور آپ کو آواز آ رہی ہے، اور یہ کہ آپ کو اپنی بہن اور بیٹی کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نومبر 2014 یعنی 2014 میں تقریباً 7 سال پہلے، 6.5 سال پہلے یہ کیس دائر ہوا تھا۔ کتنے سال پہلے؟ اب تک نواز شریف کا کیس تو دنوں میں چلتا ہے اور دنوں میں ختم ہوتا ہے، اور دن میں 2 سماعتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن 7 سال میں اس ادارے نے ابھی تک صرف 70 سماعتیں کی۔ کتنی سماعتیں؟ اور جانتے ہو یہ جو جعلی خان ہے پاکستان پر جو عذاب مسلط کیا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ جانتے ہو کہ عمران خان نے اس مقدمے کو ملتوی کرانے کی کتنی بار کوشش کی؟ 30 بار۔ کتنی بار؟ کون کہتا تھا کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دے دو؟ کون کہتا تھا؟ تو آج پی ڈی ایم اور عوام آپ سے پوچھتی ہے کہ اگر چوری نہیں کی تو 30 بار مقدمے کو رکوانے کی کوشش کیوں کی؟ اور جانتے ہو اس تابع دار خان نے 6 مرتبہ ہائی کورٹ میں درخواستیں دی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتا۔ 6 درخواستیں دی۔ کتنی درخواستیں دی؟ اور جانتے ہو
जानते हो कि एक कमेटी बनाई ईसीपी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई जिसको कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी, जिसको कहते हैं तहकीकाती कमेटी, जिसका काम था तहकीकात करके उसकी तफसीलात अवाम के सामने रखना। लेकिन जब तहकीकात शुरू हुई तो ऐसी जराइम की ऐसी लंबी दास्तान सामने आई कि क्योंकि ऊपर से हुक्म था तो तहकीकाती कमेटी को, स्क्रूटनी कमेटी को कहा गया कि इनके ऊपर हथौला रखो, और वो स्क्रूटनी कमेटी फिर इमरान खान की और ईसीपी की ताबेदार बन गई। जानते हो कितने साल हो गए? 3 साल हो गए स्क्रूटनी कमेटी अभी तक इसकी तहकीकात ही करती जा रही। कितने साल हो गए? हालांकि इतने वाज़े और होश उड़ा देने वाले हकायक हैं जिनका फैसला 3 साल तो क्या 3 दिन में हो सकता है, लेकिन 3 साल से ये सांप बनकर उसके ऊपर बैठे हुए हैं। और जानते हो कि 80 समाअतों के दौरान इमरान खान ने कम से कम 24 मर्तबा कार्रवाई रुकवाने की कोशिश की। कितनी मर्तबा? और 4 दरखास्तें दी कि कार्रवाई को खुफिया रखा जाए। कितनी दरखास्तें दी? और अगर इतना ही आपका दामन साफ था तो क्यों दरखास्तें दी कि कार्रवाई को खुफिया रखा जाए? इसका मतलब है चोरी तो हुई है, और ना सिर्फ चोरी हुई है बल्कि बहुत बड़ी चोरी हुई है। लगाना चाहता हूँ, दुनिया को मचाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ। और देखो बयान बदलना तो इनका रोज का काम है, इसीलिए इनको यू टर्न खान कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्होंने यहाँ सिर्फ बयानात नहीं बदले, इन्होंने 8 वकील बदले, लेकिन 8 कितने वकील बदले? लेकिन 8 वकीला को बदलने के बाद भी चोरी नहीं छुपी। बोलो, चोरी नहीं छुपी। और जानते हो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि एक और कौमी इदारा है, उसने इमरान खान के 23 खुफिया बैंक अकाउंट पकड़े। कितने बैंक अकाउंट्स पकड़े? जो बैंक अकाउंट्स इसने ईसीपी से और पाकिस्तान की आवाम से छुपा कर रखे थे, वो 23 बैंक अकाउंट्स जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने पकड़ लिए। और ये 23 बैंक अकाउंट्स इस इमरान खान के दस्तखतों के साथ ऑपरेट हो रहे थे। ये नहीं कि इनको पता नहीं था, जानबूझ के पाकिस्तान की आवाम से और ईसीपी से अपना जुर्म छुपाया इन्होंने। और स्क्रूटनी कमेटी खुद ये एतराफ करती है कि ये हकायक हम आपको फराहम नहीं कर सकते क्योंकि इमरान खान ने मना किया है। मेरे भाइयों, अब पता चला कि चोर 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 की गिरदान करने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। क्या आप ये जानते हो? एक और जुर्म सुन लो। जानते हो ये पैसा जो इमरान खान के अकाउंट्स में आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से आया, ये कैसे आया जानते हो? किसके जरिए आया? हुंडी के जरिए। किसके जरिए आया? जानते हो ना हुंडी के जरिए कौन सा पैसा लाया जाता है? जानते हो ना? अब पता चला कि ये कंटेनर पर चढ़कर धरने में क्यों आवाम को तरगीब देता था कि हुंडी के जरिए पैसे मंगवाओ, क्योंकि ये खुद हुंडी के जरिए ये चोरी और पता नहीं खुफिया का पैसा कहां से मंगवा रहा था।
और मेरे भाइयों बहनों, ये बताओ कि आप जानते हो किन दो मुल्कों से इसको फंडिंग हुई? जानते हो? दो मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए। एक है इंडिया, भारत, क्या? और दूसरा है इस्राइल। वो इस्राइल जो फलस्तीनियों को के ऊपर मजालिम पर मजालिम ढा रहा है। इस्राइली इमरान खान को पैसा दे रहे थे। अब जानते हो कि ये पैसा खुफिया अकाउंट्स में क्यों आया? और ये भी जानते हो कि ये पैसा हुंडी के जरिए भी आया और इमरान खान के जाती मुलाजमों के अकाउंट्स में आया। किन के अकाउंट्स में आया? और इसको फंडिंग इंडिया से जानते हो किसने की? भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने, जिसका नाम दोसांझ है। दोसांझ, ये लिखा है मेरे पास ये नाम, उसका नाम है इंदरजीत दोसांझ। भारतीय जनता पार्टी का वो मेंबर है, उसने इसको फॉरेन फंडिंग में पैसा दिया। और जिस इस्राएली ने इसको पैसा दिया उसका नाम है बैरी सी शेप्स। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसी बेतहाशा कंपनियों और लोगों ने इसको पैसा दिया। और अब देखो, जब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से फंड लोगे तो फिर मोदी की जीतने की दुआएं क्यों नहीं मांगी जाएंगी? फिर कश्मीर क्यों मोदी की झोली में नहीं फेंका जाएगा? भाई, जिनसे आप पैसे लेते हो उनका काम भी तो करना पड़ता है ना। फिर करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? और फिर मेरे भाइयों, ध्यान से ये बात सुनना। और जब कहता है ना कि पीडीएम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, पीडीएम से इतना फर्क पड़ा है कि जो 7 साल से केस दबाकर बैठा हुआ है वो इसको खोलना पड़ गया है। और जानते हो, जब पीडीएम ने और अवाम के दबाव में जवाब देना पड़ा तो इसने क्या जवाब दिया जानते हो? कहता है कि मुझे नहीं पता, ये सब मेरे एजेंट्स ने किया है। किसने किया है? कहता है मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता, सब मेरे एजेंट्स ने किया है। वाह 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 वाह, तालियां बजाओ, तालियां। या तो वो खुद बहुत बड़ा बेवकूफ है, या वो मेरे भाइयों पीडीएम को और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ समझता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि जब पैसे धड़ाधड़ आ रहे थे और उन पैसों को तुम एक मुंतखब हुकूमत और एक मुंतखब अवामी वजीर आजम जिसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ, जब तुम पानी की तरह पैसा बहा रहे थे और धरनों पर खर्च कर रहे थे, उस वक्त तुम्हें नहीं पता था कि ये पैसा एजेंसी के पास से आया है या कहाँ आया है? पैसा आते वक्त नहीं पता था कि एजेंट्स के थ्रू आया है। जब जवाब देना पड़ा तो एजेंट्स याद आ गए। और 7 साल बाद याद आया, जब अवाम ने जवाब मांगा, जब दबाव पड़ा तो 7 साल बाद याद आया कि पैसे तो मेरे एजेंट्स को पता है, मुझे पता नहीं है। बोलो जरा, एक दफा बोलो, वाह वाह वाह, वेरी गुड। दस्तखत करने का पता था भाइयों, सुनना, दस्तखत करने का पता था, पैसा वसूल करने का पता था, पानी की तरह पैसा साजिशों में इस्तेमाल करने का पता था, मुंतखब हुकूमत को गिराने में पैसा इस्तेमाल करने का पता था, मगर ये पता नहीं था कि करोड़ों और अरबों और खरबों जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है। बिल्कुल उसी तरह मेरे भाइयों, बिल्कुल उसी तरह
जिस तरह ये कहता है कि मुझे हुकूमत में आने की मेरी तैयारी नहीं थी, भाई हुकूमत में आने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी, तुम्हें काम करना नहीं आता था, लेकिन अवाम की जेबों पर डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। अवाम की खिदमत करने की तैयारी नहीं थी, लेकिन अवाम को लूटने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। महंगाई को आसमान पर पहुंचाने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। आटा, चीनी, गंदम और दवाइयों पर डाके डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। अगर ये सब तुम्हारे एजेंट्स ने किया है, इस्लामाबाद और पिंडी के भाइयों और बहनों, अगर ये सब तुम्हारे एजेंट्स ने किया है, तो जरा ये भी बता दो ईसीपी के सामने कि 2018 के इलेक्शंस में तुम्हारे बैलेट बॉक्सेस में वोट किस एजेंट ने डाले थे। जरा ये भी पाकिस्तान के अवाम को बता दो कि अगर पैसा देने वाले एजेंट्स थे तो तुम्हें इक़्तिदार में लाने वाले एजेंट्स कौन थे। और ये भी बता दो कि साकिब निसार से तुम्हें जाली साकिब और अमीन, सादिक और अमीन नहीं, साकिब और अमीन का सर्टिफिकेट दिलवाने वाले एजेंट्स कौन थे। और अब ये भी बता दो, यहाँ मीडिया की वैन्स मौजूद हैं, ये भी बता दो कि तुम्हारे लिए मीडिया को मैनेज करने वाले, मीडिया को दबाव में लाकर अपनी मर्जी की खबरें चलवाने वाले एजेंट्स कौन है। पूछो मेरे भाई, कौन है वो एजेंट्स। और ये भी बता दो कि तुम पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की तबाही के जिम्मेदार हो, तुम पाकिस्तान के बड़े बड़े जराइम के जिम्मेदार हो। तो जरा ये भी बता दो, तुम्हारे हर जुर्म और हर गलती पर पर्दा डालने वाले एजेंट्स कौन हैं? कौन है? आवाज नहीं आ रही, कौन है? काश सुन तो रहे होंगे, मेरा ख्याल है कि ये आवाज पहुंच जाएगी कि लोग जानते हैं कि तुम्हें 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत करने वाले एजेंट्स कौन हैं। देख लो, जहां जहां आवाज जा रही है, देख लो, लोग नहीं डर रहे। पाकिस्तान बदल रहा है। तुम जितना भी जोर आजमा लो, तुम जितना भी अपनी ताकत आजमा लो, तुम पाकिस्तान के अवाम से नहीं जीत सकते। बताओ कि पाकिस्तान की अवाम अब जमहूरियत के लिए खड़ी हो गई है या नहीं खड़ी हो गई? हाथ उठा के बता दो मुझे। और अब मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। मेरे साथ ये सवाल पूछोगे ना? मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल पूछना चाहती हूं कि क्यों 2018 के इलेक्शन में जब आपके हाथ पांव बांधकर आरटीएस को बंद किया गया, आप क्यों खामोश रहे? पूछो, आप क्यों खामोश रहे? जब आपके इदारे, मैं ईसीपी की बात कर रही हूं, अभी बाकी इदारों की बात नहीं करी, डरने की जरूरत नहीं है। जब आपके इदारे यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यरगमाल बनाकर एक नाअहल और तारीख के सबसे बड़े नालायक शख्स को सिलेक्ट करके, क्या करके, अवाम के वोटों पर डाका डालकर, जब वो एक तारीख के सबसे ज्यादा नालायक और नाअहल शख्स को
22 करोड़ अवाम की किस्मत का मालिक बना दिया गया, तो आप क्यों नहीं बोले? ईसीपी मुझे बताएं, आप क्यों नहीं बोले? बोलो। आज आपके इदारे की नाकामी और खामोशी की सजा मेरे 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। बोलो, भुगत रहे हो ना? आज जब पेट्रोल बम, जिसको उर्दू में पेट्रोल बम कहते हैं, वो आज जब अवाम के सरों पर गिरता है, तो ईसीपी वालों सुन लो, ये अवाम तुम्हें भी इसमें शरीके जुर्म ठहराती है। ठहराते हो? आज जब हर रोज कमर तोड़ महंगाई होती है, मैं जानती हूं आपके घरों में महंगाई का डेरा है, मैं जानती हूं। आज जब रोज अवाम के ऊपर महंगाई का तूफान आता है, महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगा आटा, महंगी रोटी, महंगी चीनी, महंगा साबुन, महंगा खाने पीने का कुकिंग ऑयल जिसको कहते हैं, किस किस चीज का मैं नाम लूं। आज जब उन चीजों की कीमतें रोज अवाम की पहुंच से बाहर हो जाती हैं, तो अवाम आपको भी इस जुर्म में शरीके जुर्म ठहराते हो। बोलो, मैं ठीक कह रही हूं? आज जब अद्वियात की, दवाइयों की कीमतें बढ़ी है ना, आज जब अद्वियात की कीमतें गरीब मरीजों की पहुंच से बाहर हो जाती है, तो ईसीपी को लोग शरीके जुर्म ठहराते हैं। आज जब मेरे यंग बच्चे, नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के आज जब बेरोजगार होते हैं, तो याद रखो ईसीपी आवाम तुम्हें भी शरीके जुर्म ठहराती है। आज जब क्या असातिज़ा, क्या हुकूमत के मुलाजिम, क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या लेडी हेल्थ वर्कर्स, क्या पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजिमीन आज हर कोई सड़कों पर एहतजाज कर रहा है, तो याद रखो ईसीपी अवाम तुम्हें भी शरीके जुर्म ठहराती है। आज जब गर्दिशी कर्जा 3000 अरब की बुलंद सतह पर चला जाता है, लेकिन अवाम को तब भी बिजली नहीं मिल रही, तो याद रखो ईसीपी लोग आपको भी शरीके जुर्म ठहराते हैं। और आज जब अचानक पूरे मुल्क के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, चारों सूबों के अंदर बिजली बंद हो जाती है, अचानक पूरा मुल्क अंधेरों में डूब जाता है, तो याद रखना ईसीपी इस नाअहली और नालायकी में लोग आपको भी शरीके जुर्म ठहराते हैं। और आज जब ब्रॉडशीट स्कैंडल जिसको पाकिस्तान की आवाम फ्रॉडशीट स्कैंडल को कहते हैं, आज जब उसमें ये हकायक सामने आते हैं कि तुमने 22 करोड़ अवाम के खून पसीने की कमाई चुपचाप रातों रात स्मगल करवा दी पाकिस्तानी हाई कमीशन में, और वो जाली फॉर्म उसको ले उड़ी, वो तुमने भेजी ही इसलिए थी कि क्योंकि तुम्हें पता था वो जब्त हो जाएगी। और वहां तक नहीं बात, देखो ये ऐसे लोग हैं, इमरान खान और उसकी हुकूमत, ये उसमें से भी कमीशन मांग रहे थे। और आज जब तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल ब्रॉडशीट, जिसका नाम फ्रॉडशीट है, वो सामने आता है और अवाम के खून पसीने की कमाई इनकी कमीशंस में जाती है, तो याद रखो ईसीपी लोग तुम्हें भी शरीके जुर्म ठहराते हैं। और आज मलेशिया में, मेरे भाइयों बात सुनो, आज मलेशिया के अंदर जब लीज पे ना होने की वजह से 170 पाकिस्तानी मुसाफिरों को जहाज से उतार लिया जाता है, तो उस शर्मिंदगी और उस नालायकी और नाअहली में भी लोग ईसीपी को शरीके जुर्म ठहराते हैं।
اور آج جب ہزارہ برادری کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ان کے گلے کٹتے ہیں، میں گئی تھی وہاں پر ان کو گلے لگانے کے لیے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے ان کی درد کی داستان سنتے ہوئے۔ اور آج جب وہ اس جعلی وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، ہماری لاشیں پڑی ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ اور جب آج پاکستانیوں کے ساتھ اور ہزارہ برادری کے ساتھ یہ توہین آمیز سلوک ہوتا ہے کہ یہ کوئٹہ جاتا بھی ہے تو وہاں پر ایک یونیورسٹی میں بیٹھ کر جو متاثرین ہیں، جن کے بھائی بیٹے اور خاوند شہید ہو گئے، ان کو کہتا ہے میرے پاس چل کر آؤ، میں نے تم سے تعزیت کرنی ہے۔ تو آج اس قسم کی جو تضحیک پاکستان کے عوام کی آج ہو رہی ہے، ای سی پی سن لو کہ پاکستان کی عوام تمہیں بھی اس جرم میں شریک سمجھتی ہے۔ اور ای سی پی جواب دو، ای سی پی جواب دو، بولو ای سی پی جواب دو کہ پاکستان کے ساتھ یہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم جو سلیکٹڈ اور سلیکٹرز نے کیا تھا، آپ بتاؤ کہ آپ اتنے بڑے جرم میں حصے دار کیوں بنے؟ کیا بگاڑا تھا ان معصوم پاکستانیوں نے آپ کا؟ کیا بگاڑا تھا ان معصوم پاکستانیوں نے آپ کا؟ اور یاد رکھنا، اداروں پر وہ شخص حملہ کرتا ہے جو اداروں کو یرغمال بنا کر زبردستی ان سے ناانصافی پر مبنی فیصلے لیتا ہے، کیونکہ یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں نا، جو پیچھے سے کام کرتے ہیں، یہ سامنے نہیں آتے، سامنے ہوتے ہیں ای سی پی جیسے ادارے، اور عوام کی انگلیاں پھر ان اداروں کی طرف اٹھتی ہیں۔ وہ لوگ پیچھے چھپے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا چہرہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جواب تو ای سی پی کو دینا پڑے گا۔ اور اس کا جواب ایک ہی ہے، آخر میں بس ایک بات، کیونکہ ایک منٹ، آخر میں ایک ہی بات، کیونکہ عمران خان نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے، تو جب جرم کا اعتراف کوئی کر لیتا ہے تو اس کے بعد فیصلہ نہیں ہوتا، اس کے بعد صرف سزا ہوتی ہے۔ تو پاکستان زندہ باد، پی ڈی ایم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔